साक्षीदार रखते हैं और उन बच्चों को या जो भी एडल्ट भी होते हैं कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको लेके रहते हैं और भूल जाते हैं। तो गवर्नमेंट का सबका ही टारगेट एक है कि हम लोगों को रोक पाए HIV एड्स। तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई থেকে আমরা এইডসের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছি। শুধু আমাদের অফিসিয়াল ওয়ার্ক নয়, আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এনজিও যারা আছেন, আমাদের এনজিওর মাধ্যমে কাজ করা, আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে, যেটা ICTC বলে সংস্থা, আমাদের এইডসের যে শাখা আছে সেটার মাধ্যমে কাজ করা। আমরা বিভিন্নভাবে TSEXের পক্ষ থেকে আমরা সেই এইডস এই যেটা রোগ সেটার বিরুদ্ধে, HIV যে রোগ সেটার বিরুদ্ধে আমরা কাজ করে আসছি সংঘবদ্ধভাবে। আমাদের এই যে মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন আমরা সেটা যে বিরাট আকারে আমরা করছি, সেটাতে আমাদের সাথে আছেন, আমাদের সাথে কাজ করার জন্য হাত মিলিয়ে দিয়েছেন আমাদের DWS তরফ থেকে আমাদের সাহায্য করছেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল এডুকেশন, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ইউথ অ্যাফেয়ার্স, তো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। আমরা সত্যি ভাগ্যবান যে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ইউথ অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টারকে বলে দিয়েছেন যে আমাদেরকে কাজ কীরকমভাবে করতে হবে, আমাদের গাইডেন্স দেওয়ার জন্য ওনাকে নিযুক্ত করেছে। আমরা ওনার গাইডেন্সে আমাদের গতকালকেও মিটিং হয়েছে, তার আগেও আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে ওনার সাথে কথাবার্তা বলেছি কীরকমভাবে আমরা প্রোগ্রেস করব। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর থেকে আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসছেন, NSS থেকেও এসছেন, বিভিন্ন আদার স্পোর্টস থেকেও এসছেন, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, DWS, এরকমভাবে সবাই আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এই কাজে আমাদের এগিয়ে এসছে। আমি সবাইকে TSEXের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমি বলবো যে নেপো থেকে আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল যে অনুপ কুমার পুরী মহাশয় এসছেন, স্যার এসছেন, উনি আপনাদেরকে বিস্তারিত রিগার্ডিং HIV, AIDS এবং IDU সম্বন্ধে কিছু বলবেন, কীরকমভাবে ওনার প্ল্যান কীরকমভাবে আমাদের গাইড করবেন। উনি ডেফিনেটলি আমাদের একটা গাইডেন্স রোড ম্যাপ দেবেন। আজকের এই প্রেস মিটে আপনাদের সবাইকে আসার জন্য আমি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমার সাথে যারা আছেন তাদের মধ্যে আছেন অনুপ কুমার পুরী, ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল NACO, ভাবনা রাও ম্যাডাম ডেপুটি ডাইরেক্টর NACO, নিধি রাওয়াত ন্যাশনাল কনসালটেন্ট IEC মেইনস্ট্রিম NACO, উৎপল দাস কনসালটেন্ট IEC মেইনস্ট্রিম NACO। আমরা আজকে এখানে প্রেস মিটের জন্য আপনাদের ডেকেছি। কালকেও আমাদের প্রেস মিট হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন যে আগামী 24 এবং 25 আমাদের TSEXের তরফ থেকে এখানে প্রথম হবে 24 তারিখ একটা মেগা কুইজ কম্পিটিশন এবং 25 তারিখ হবে আমাদের মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন, যেটার আয়োজন আমরা আস্তাবল মাঠে করছি। তো আমি রিয়েলি আই এম ভেরি মাচ গ্র্যাটফুল যে NACO আমাদেরকে এবার প্রথম আমাদের এই মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন করার জন্য পারমিশন দিয়েছে।
যেটা আমরা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা এটার আয়োজন করছি। তো আমরা খুব ফরচুনেট, আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নাকি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ওনাকে মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইনকে, যেটা এইডসের বিরুদ্ধে, এইডস অ্যাওয়ারনেস অ্যামং দ্য ইয়ার জেনারেশন করার জন্য যে আমরা প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছি, সেটাকে উনি আরও বড় আকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বললেন। সেই উপলক্ষে আমরা, যার জন্য আমরা কুমার শানুর মতো শিল্পীকে, তারপর পলক মুচল, তারপর আমাদের রাজ্যের সুরভি দেববর্মন, ইন্ডিয়ান আইডল, ওনাদেরকেও আমরা দেখেছি। কারণ আমরা চাইছি এই মিডিয়ার মাধ্যমে, মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে ইয়ার জেনারেশনকে একটা মেসেজ দেওয়া রিগার্ডিং এইডস, ড্রাগ ইন্ডিউস HIV পজিটিভ পেশেন্ট, যেটা আমাদের রাজ্যে দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে, সেটার এগেইনস্টে আমাদের মেসেজ দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। তো আমি আজকে আমাদের এই যে আপনারা যে এসছেন, সেটাতে আমি সত্যি আমি বলবো আমাদের এই প্রচারটাকে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারে নিয়ে যাওয়া। আর এটা হলো এইডসের বিরুদ্ধে যেটা আমাদের প্রচার, এবং ড্রাগসের বিরুদ্ধে যে প্রচার, সেটাকে আমরা নিয়ে যাওয়া। 2 নম্বর হলো আমরা যে একটা মিউজিক্যাল নাইট করছি, সেটাকেও প্রচারে নিয়ে আসেন, এবং আমরা যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সেটাকে সম্পূর্ণ করতে পারি, সেই বিষয়ে সেটাকেও আপনাদের সহযোগিতা করা। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ত্রিপুরাতে লাস্ট আমরা যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে করেছি, হ্যাঁ, 2022-এ ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা যেটা আক্রান্ত দেখেছি, আমাদের 2719 জন। তার মধ্যে মহিলা আছেন 775 জন, পুরুষ আছেন 1944 জন। তার মধ্যে আমাদের শিশুও আছেন, যেটা 94 জন আমাদের শিশুও আছেন। 2000 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে কিন্তু এইডসের মৃত্যু হয়েছে 619 জন। इसमें we would like to add it's 0.1, but there has been an increasing trend from, मतलब अगर हम 2010 से देखें और आज तक के में, तो वैसे तो हर जगह हमारी जो न्यू HIV इन्फेक्शन है वो डिक्लाइन पे ही है, लेकिन त्रिपुरा में ही ऐसा है, मतलब 3 स्टेट्स ही हैं, दादरा नगर हवेली है हमारा, यूटी, और एक अरुणाचल और त्रिपुरा में काफ़ी इंक्रीज इन न्यू HIV इन्फेक्शन मिले हैं, जबकि और दूसरी स्टेट्स में हमारा डिक्लाइन ही मिला है, मतलब ओवर पीरियड अगर आप देखें, बट नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंगली 0.2 के कंपैरेटिवली इट इज 0.1 इफ यू सी 0.2 नेशनल एवरेज, 0.1 आपको जो इंक्रीज दिख रहा है कौन सा साल से दिख रहा है? ये हम कंपैरेटिव देख रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ 10 इयर्स। अगर हम देखें तो हाँ, तो 10 साल की इस पीरियड में हम देखें जो न्यू HIV इन्फेक्शंस है ना, वो डिक्लाइन पे है अब हमारे पूरे कंट्री में, बट त्रिपुरा में और थोड़ा अरुणाचल में और थोड़ा सा दादरा नगर हवेली में थोड़ा राइज मिला है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन न्यू HIV इन्फेक्शन मिला है, और ये इसका एक कारण ये भी, जैसे कि सर ने इलैबोरेट भी किया था, कि इंजेक्शन ड्रग यूज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। हम लोग कर पाएंगे। मैं पहले चीज़ सर लोग, मैडम लोग के रेफरेंस में 2-3 चीज़ें इनपुट देना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली 1-2 महीने में। ये इन एडिशन टू द नेशनल गाइडलाइंस जो है कि एक्चुअली हमारा स्टेट में स्पेसिफिकली क्या है, जो आप लोगों ने पूछा स्कूल के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है। सर ने जो नेशनली गाइडलाइंस होता है उस चीज़ को सर ने आप लोगों के सामने रखा। हम लोगों ने जब रेड रिबन क्लब कॉलेज में होता है, तो हम लोगों ने ये चीज़
हम लोग का रिसेंटली एक जस्ट 1.5 महीना पहले हम लोग का एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ चेयर द मीटिंग एंड बाकी जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज थे वो थे, तो इन लोग से हम लोग पे बात हुआ। फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी आर टारगेटिंग कि हम लोग स्कूल वॉरियर करके हम लोग हर स्कूल में एक जन को करेंगे। जैसे स्कूल में मॉनिटर होता है वो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज लोग जो गोइंग स्टूडेंट्स है उनमें ही HIV/AIDS हो रहा है, स्कूल में नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। स्कूल के एजेस के लोगों में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का जो केसेस है उसको भी हम लोग को डिटेक्शन में आया, हम लोग के नज़र में आया। तो उसको देखते हुए स्कूल स्टूडेंट्स में ही कोई एक स्टूडेंट होना चाहिए जो उस चीज़ को फॉलो अप करे, देखे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर से एक स्कूल वॉरियर करके हम लोग एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, सो दैट स्कूल में भी HIV/AIDS का कुछ एक्टिविटीज़ और उस चीज़ को फॉलो अप करें। ये हम लोगों ने एक एडिशनल चीज़ें किया है। रिसेंटली पिछले कुछ महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस, क्योंकि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको तो दवाई देना पड़ेगा छोड़ने के लिए, उसको टाइम लगेगा उसको फिर उस स्टेज में आने के लिए, नॉर्मल आने के लिए। पहले आप लोगों को पता होगा, पहले हम लोग के यहाँ पे जो सेंटर से दवाई दिया जाता है उसको OST सेंटर कहते हैं, ऑपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर्स। इसका एक गाइडलाइंस होता है कि इतना पॉपुलेशन है, इतना प्रिवेलेंस है, तो वो वहाँ पे बनेगा, जो नेको सपोर्ट करता है हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि जो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, मगर हम लोग का केसेस जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से उस सेंटर पे बहुत लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, बीच में वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है फ्रॉम द ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने फिर उस मीटिंग में फिर डिपार्टमेंट के बाकी लोग से, हमारा जितने भी TSEX के कॉलीग्स हैं उन लोग से हम लोगों ने डिस्कशन किया डिटेल में कि कैसा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का रिसेंटली तय किया कि हम लोगों ने कुछ और सैटेलाइट OST सेंटर करेंगे। What is this OST? ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी, ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर, हाँ OST। पहले क्या होता था, सपोज आप लोग देखिए यहाँ पे जितने भी मीडिया फ्रेंड्स है, ज़्यादातर का लोग अगरतला में है। अगर किसी को इंजेक्टिंग ड्रग यूज से उसको छुटकारा लेना है तो उसको दवाई लेना पड़ेगा। और दवाई तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कैल्पोल का टेबलेट है कि 10 टेबलेट का एक स्ट्रिप आता है, हम दे दिया, घर में जाके खाया, वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कि इसका यूज एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। उसको फिर उसको दवाई वहाँ पे ही सेंटर में खिलाया जाता है। तो हमारा अप टू 2021 हम लोग का नियरेस्ट OST सेंटर फ्रॉम अगरतला और सिपाहीजला का एरिया का था कुलाई, धलाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आप सोचिए डिस्टेंस कितना है। हम लोग दवाई नहीं दे पाएंगे ना, हम लोग डिपार्टमेंट पॉलिसी मान के चलता रहेगा, दे नहीं पाएंगे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया एज पर द जियोग्राफिकल कंडीशन को कंसीडर करते हुए। तो हम लोग का अभी हम लोग बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग का टोटल और 4 सैटेलाइट OST सेंटर इस साल 2022 में हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने से इनिशिएटिव लेके एटलीस्ट मेडिसिन डिस्पेंसिंग सेंटर हम लोग वहाँ पे अपने मेडिकल ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट से है उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दिलवाया, फार्मासिस्ट को दिलवाया, ANM को दिलवाया, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। तो क्योंकि नेको के नॉर्म्स में अगर हम लोग चाहते हो सकता है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, मगर हम लोगों ने इस साल इन लोग से रिक्वेस्ट किया है और हम लोग को होपफुल है कि जैसे पिछले सालों में हम लोग को जितना सपोर्ट किया नेको में, इस बार भी हम लोग को इस तरह से सपोर्ट मिलेगा, इनके गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट भी चाह रहे हैं, आवर कॉलीग्स ऑल्सो वांट पीपल ऑफ द। उन्होंने और बाकी सारे त्रिपुरा स्टेट के सभी ऑफिसर्स का, यहाँ के मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का और सारे डिपार्टमेंट्स का उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे होस्ट करने के लिए तैयारी की है। मैंने खुद जाके अभी देखा है कि अभी कल का प्रोग्राम जो क्विज कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छे ऑडिटोरियम में हो रहा है एंड दैट विल बी ए ग्रैंड सक्सेस। आई एम very sure about it that it is going to be a grand success. And insofar as the other program is concerned,
which is being for the day after tomorrow, which is organized for Northeast Multimedia Campaign. That is also going to be a grand success. At a very short notice, Tripura State has become ready to host both these two events. Earlier, these two events were going to be held elsewhere, but Tripura has taken it over. They are shouldering this responsibility, and that shows the zeal of the Tripura State. And so far as जैसा कि मैडम ने बोला कि वो यहाँ पे इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स की प्रॉब्लम्स स्कूल गोइंग बॉयज़ में और कॉलेज गोइंग बॉयज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो ये एक चिंता का विषय है. उसके ऊपर हमारे को कुछ करना चाहिए. उनकी एजुकेशन के बारे में, वो उन तक ड्रग पहुँचती कैसे है इस बारे में, और उनके पेरेंट्स को कैसे उसके अंदर हमने उनके एजुकेशन करना है. एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इस बारे में हमें ये देखना होगा, और इस तरह के कुछ एजुकेशन का मटेरियल बनाना होगा. और ये एक हमें सबसे पहले देखना है कि ये इससे पहले कि वो उनको इन्फेक्शन हो, उससे पहले ही हम उनको किसी eligible for this purpose. ये क्विज कंपटीशन जो टुमारो, वो तो RRC होते हैं, उसमें RRC क्लब कॉलेज में होते हैं. रेड रिबन क्लब्स, रेड रिबन क्लब्स they are formed in the colleges. So over there the college students are participating in this competition, and those who are winner of various states, they will amongst them there is a competition between the within the region, and then from one region to different region they will meet at specific state. Like in Tripura is as we have a national competition also. They have accepted to host this competition also alongside the Northeast Multimedia Campaign. So madam has said that उनको एक दिशा दें, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है, एडोलेसेंट एज एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है. एक्सपेरिमेंटिंग बिहेवियर होता है, और एक्सपेरिमेंटिंग बिहेवियर की वजह से वो गलत दिशा भी ले सकते हैं और एक सही दिशा भी ले सकते हैं. इसमें हमारे दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जैसे और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए अगर हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक हमारे प्रोग्राम में अगर वो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में आ सकते हैं तो वो आगे के लिए भी वो उनको हम आगे लाया जा सकता है, ताकि उसके हम उनको एक दिशा दे सकें, उन बच्चों को दिशा दे सकें कि वो एक इंट्रावीनस ड्रग यूसेज बंद कर दें. इससे इसके कई तरह की इन्फेक्शन हो सकती है. HIV ही नहीं, हेपेटाइटिस B और C भी हो सकता है इससे. तो ऐसी उसके लिए ऐसे असाध्य रोगों के लिए जो ऐसा रोग है जो जिसका भी कोई क्योर नहीं है, हमेशा के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ऐसे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए उन्हें पहले से कदम लेने चाहिए. बच्चों को एक सही दिशा देनी चाहिए, वो एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से. उसके अलावा जो बच्चों को ये ड्रग्स की आदत पड़ गई है, उसके लिए हमारे पास टारगेटेड इंटरवेंशन है, और उनको धीरे धीरे करके ब्यूप्रिनॉर्फिन देते हैं. टारगेटेड इंटरवेंशन में वो वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं, और वो हमारा अल्टीमेट एम ये होता है कि वो उनको ताकि इंट्रावीनस ड्रग को छोड़ दें और दूसरे माध्यम से सबलिंगुअली लेना शुरू कर दें, ताकि
वो उसका असर खत्म हो जाए, उनको दूसरे तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा और कम से कम HIV एड्स का खतरा खत्म हो जाएगा। मेन स्ट्रीम में आए, सामाजिक मुख्य धारा में से के साथ जुड़े, यही एक हमारा वो ये हमारा एक एम रहता है। तो इस और ये जो नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन है वो दैट वाज स्टार्टेड इन 2018 एंड टिल नाउ it has in 2018 में initially it was carried out in the Nagaland, which was followed by in Manipur in 2019. But in 2020 it could not be arranged because of the COVID guidelines, and in the 2021 it is postponed. So the campaign which is being held over here, that is 21 campaign only, 21-22 campaign only, and this campaign is dedicated only for the HIV and AIDS, and it is a dedicated activity of Northeast region only, and it is between the competition between the 8 northeastern states, and first of all they have their own musical competition within the districts, then within the state, then those who are winner bands, they will come to the states which is wherein the competition is held, and this year Tripura has accepted to host this campaign, and I'm sure that this time, with the support of Tripura state, we will be hosting it very nicely. I wish grand success to the program. IEC के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो एडोलसेंट एज ग्रुप में ऐसी एज ग्रुप होती है जिसमें एक्सपेरिमेंटिंग होती है, they are and full of energy, so we have to just channelize their energy from wrong direction to a right direction, and उसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारा बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप एक बात बता रहे थे कि आप इंजेक्टिव ड्रग लेने वालों को दूसरा ड्रग लेने के लिए कुछ सजेस्ट करते हैं कि हाँ, वो एड्स से बचने के लिए? हाँ, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव है सिर्फ एड्स से बच के रहना। नहीं, हमारा ये पर्सपेक्टिव नहीं है। अल्टीमेटली उनको वहां से उससे भी छुड़ाना होता है, लेकिन धीरे धीरे उस टाइम उसको आदत होती है, उसको आदत है, तो आदत में वो छोड़ेगा तो नहीं, तो इससे अच्छा है कि बुप्रीनॉर्फिन उनको दे देते हैं, उनको सामने ही खिलाते हैं, वहीं पे बिठा के खिलाया जाता है अपने सेंटर में, जहाँ पे TI सेंटर में, टारगेटेड इंटरवेंशन सेंटर जो